Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Anil Saranjit. Welcome to the Motorcycle Journal. And weather is absolutely perfect for riding. Roads are beautiful, and I hope you had a pleasant riding experience with us throughout Bhutan. We are expected to reach our hotel by 2:15, and hope to see you soon. Thanks for riding with us. Thank you. He's got a colorful mask. He's looking like a Red Indian. Fully no, sir. Color is there inside. Today only it has come out. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द मोटरसाइकिल जर्नल। और आप सभी का स्वागत है लास्ट डे भूटान में। मन नहीं करा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। अभी है पेंसिलिन में और निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं भी रेडी हूँ और जाने के पहले फिर से रेडी हूँ वापस नई राइड के लिए, किसी नई कंट्री में या फिर इंडिया में किसी नई जगह पर राइड करने के लिए फुल्ली तैयार हूँ। अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो जाके पहले एपिसोड से देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अच्छी लगी तो मैं और बनाऊंगा, नहीं लगी तो मैं और बनाऊंगा। बट राइड कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। भूटान के गवर्नमेंट को और यहाँ पर जो गाइड थे हमें, जिन्होंने गाइड किया, उन सबको थैंक यू। अमेजिंग पीपल, अमेजिंग कंट्री, डिलीशियस फूड, मक्खन रोड, शांति, मज़ा आ गया। बाइक सारी रेडी है, हम लोग रेडी हैं, निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच ये पूरी सीरीज देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। Okay, guys. Last day of the ride. Time to say see you again. I think Bhutan has been awesome this time. We've had good times together, created enough memories, and the reason I said in the beginning that this place is special is something that I think somewhere you all will vouch for it. In a nutshell, I just personally, on behalf of every one of you, thank KB again and Sanu for being there. It's a privilege to have you, KB, every time we come. You've always really made the group feel comfortable, gone beyond, if not to do what you have to do. So something small from all of us till we see you again. Shalaja, please do the honor. Thank you, KB. Woo! You can carry the ladies, right? And for Ugain, I'll call the youngest one in the group to do that. Right? That's enough. And second. Yeah. Thank you. Yeah. And this is for. So, Yeah. Okay. Thank you all, and we'll see you again. Thank you. I think both the ladies, Darshana and Samla, you've been wonderful, wonderful pillions. It's lovely always to have, lady riders accompanying. And yeah, it always makes the ride special. thank you. Thank Thank you. you all. You made us feel comfortable. Thank you. Pleasure. Thank you. So yeah, last day, final ride. Let's do it, gentlemen. Let's ride safe. Okay, Call me. we'll be going. I'll call you, John. That's it. So, last day in Bhutan. Last day भी नहीं, last 2 hours में भी, जब तक इमिग्रेशन नहीं होता। और ये रहे हमारे राइडर्स जिनके साथ ये पूरे 10 दिन बिताए हैं। बहुत 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 मज़ा आया। ये मेमोरीज़ जो बनी है पिछले 9-10 दिनों में, ये हमेशा साथ रहेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियोस या पिक्चर्स निकालना नहीं चाहिए और सिर्फ फील करना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट पे। अग्री, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अपनी वीडियो या पिक्चर देखते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह की मेमोरी रिफ़्रेश हो जाती है। सो दोनों चीज़ें। और हम लोग टू बी और नॉट टू बी वाले जोन में हमेशा रहते हैं। हर कोई इस जोन से गुजरता है जब उसको लगता है कि यार नहीं, कुछ नहीं चाहिए, फिर लगता है कि नहीं, सब कुछ होना चाहिए। यार नहीं, तस्वीरें नहीं, प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, आज में जियो। फिर लगता है कि नहीं यार, तस्वीरें भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जिस जगह पे है और जैसे हम दिख रहे हैं, जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए ही कैप्चर की जा सकती है। यस, आपके जहन में, आपकी मेमोरी में हमेशा वो रहेंगी।
लेकिन it's better to collect those memories in the form of pictures and videos. I'm so grateful to Goodwin जिन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज किया, and they are really really good. Whenever you're planning your motorcycle tour, international or national, you can just go to Goodwin Motor Tours on Instagram and DM them. Wonderful team, and इनकी itinerary बहुत ही बेहतरीन है. Choice of hotels, choice of food, top notch, and the entire planning is really good and smooth. You don't have to think, you don't have to worry at all. Right from the beginning बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है और आपको पता भी नहीं चलती कि राइड कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई. सो एंड और अबाउट भूटान, यार यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं. ऐसा नहीं, हमारी कंट्री में भी, हर कंट्री में है. यहाँ के लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं. बी इट अ मैन और अ वुमन, यहाँ ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब मेहनत से काम करते हैं और ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार है, दिल के अच्छे हैं. वेरी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पीपल. कोई हॉन्क नहीं करता अननेसेसरी, ओनली इन द इमरजेंसी सिचुएशन. पीपल आर नाइस. roads are really really good. There are a couple of patches which is like hardly 1%. जितना हमने राइड किया है 900 किलोमीटर में, तो ये हार्डली 1% है जो रोड आपको थोड़ा सा उबड़ खाबड़ दिखेगा. मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स और सम अदर रीज़न. अदरवाइज रोड्स आर रियली रियली गुड. एंड यहाँ का फूड, यहाँ की ऑक्सीजन लेवल, आपको लगता नहीं है आप इतनी हाइट पे हैं. और बहुत ही शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना और कल्चर, आर्ट आपको यहाँ की बिल्डिंग्स में दिख जाएगा. जिस तरह का आर्किटेक्चर है यहाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए. डेफिनेटली कुछ बिल्डिंग्स अलग होंगी, लेकिन इसमें इनका आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन, वो सारे चीज़ इनके इंटीरियर एक्सटीरियर में दिखाई देता है, विच गिव्स यू द फीलिंग ऑफ हाउ यूनाइटेड दे आर. एंड इन्हीं सारी चीज़ों से आपको समझ में आता है कि ये कितना यूनाइटेड है और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं. सो या आई एम रियली हैप्पी कि भूटान का टूर हुआ और लुकिंग फॉरवर्ड आने वाले और भी टूर्स, गुडविन के भी, और मे बी सोलो और विथ फ्यू राइडर्स. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू परस्यू दिस till I'm alive. I think that's a wrong thing to say. Let me rephrase it. This is keeping me alive. The riding is keeping me alive. Yes, I love my profession. Acting तो मेरा पहला मेरा मेन काम है ही, but this is something which I'm going to cherish for the rest of my life. मज़ा आ गया. अब चलते हैं इमिग्रेशन में. इमिग्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी KB के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है. So it's going to be smooth immigration, except at the line, except the Gardi we call in Mumbai. Otherwise we are all set. Another 4 to 5 hours of journey from Bhutan to from Phinchilin to Siliguri, and then होटल में चेक इन करेंगे. We will segregate our bags. एक बैग बाइक्स के साथ मुंबई पहुंचेगा और एक बैग मेरे साथ फ्लाइट में. नोटिस करेंगे यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, सारी गाड़ियाँ इत्मीनान से, शांति से निकल जाती है. यहाँ कोई ऐसा डरा हुआ नहीं है टर्न पे कि अरे टर्न ले रहा हूँ, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो हॉर्न बजाना है, मुझे बताना है कि मैं आ रहा हूँ. ऐसा ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपनी लाइन में राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और ये ट्रस्ट है कि सामने वाला भी अपनी लाइन में है, तो दैट्स इट. यू डोंट नीड टू हॉन्क. आप देख लीजिए यहाँ का डिफरेंस. और जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसके बाद, आई लव माई कंट्री, आई से इट अगेन एंड अगेन, आई लव माई कंट्री, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ सिविलियंस का काम है. गवर्नमेंट आपको
ये कह सकती है कि कीप द सिटी क्लीन। क्लीन रखना आपका काम है, हमारा काम है। नो हॉन्किंग के बोर्ड लगा सकती है गवर्नमेंट, बट उसको फॉलो करना हमारा काम है, आपका काम है, हम सबका काम है। हम बस इतना कर ले तो यार टूरिज्म हमारा और बढ़ जाएगा। थोड़े से मैनर्स एटिकेट्स आ जाएं, दैट्स इट। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, वी आर ऑल सॉर्टेड, ऑल गुड। सी इतनी लाइन लगी है, किसी को जल्दी नहीं है कि भाई हॉर्न बजाओ हॉर्न बजाओ। सी पीछे देखिए, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, शांत, पेशेंस से लाइन में लगे। ये देखिए इतनी लंबी लाइन है, ये देखिए कोई हॉन्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर बीच पे गैप रख दिया गया है, यहाँ पर बीच में गैप रखा गया है ताकि व्हीकल यहाँ से पास हो सके। कोई भी हॉन्क नहीं कर रहा है, कोई जल्दबाजी में नहीं है। हालांकि पेट्रोल पंप में काफ़ी रश है, बाहर भी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, पीछे भी देखो पूरा ट्रैफिक। नो हॉन्किंग एट ऑल। और वो रहा हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग, इंडिया और भूटान का बॉर्डर। थैंक यू, इट इज़ माई पासपोर्ट। गेट क्रॉस करते ही आ जाएगा जयगांव, और आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर ट्रैफिक पे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। और जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है। ये रहा बॉर्डर, भूटान में हूँ और फिनसुलिन से बॉर्डर क्रॉस करते ही हम पहुँच जाएंगे इस दरवाजे के बाहर, इस गेट के बाहर, जयगांव। और सुनाई दिया आपको? Here we go। हाँ बेहतरीन, बहुत बढ़िया, पता चल गया हम आ गए। क्यों बजाते हैं हॉर्न भाई, क्यों? तो आपने अभी देखा ह्यूज डिफरेंस साउंड में। यार कितना भी ट्रैफिक हो, हॉर्न की ज़रूरत तभी पड़ती है जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है। बट हम लोग पता नहीं क्यों उसको एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं विदाउट पेशेंस। जहाँ भी अगर लंबी लाइन थोड़ी दिखी, जहाँ सामने कोई गाड़ी स्लो है, वी बिकम वेरी इम्पेशेंट और हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। थोड़ा सा वो हर्ट करता है। और गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस चीज़ का क्या कर सकते हैं रादर देन ब्लेमिंग। ये डेफिनेटली हमें अपने कल्चर में, डेफिनेटली हमें ये चीज़ दूसरी कुछ कंट्री से सीखनी चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ा एक है ये हॉर्न। नॉइज़ पोल्यूशन नाम की एक चीज़ होती है, वो हमें नहीं समझ में आती। नॉइज़ पोल्यूशन तो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ आप हर किसी को सड़क पर इरिटेट करते हुए चलते हैं। इट्स इरिटेटिंग, बेवजह हॉर्न बजाना इरिटेटिंग। अगर हम ये एक चीज़ सुधार लें एज ए नेशन, जो कि हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना इसमें नहीं है। अगर ऐसा हम ये चेंजेस ले आए तो यार बहुत एक बड़ा टिक मार्क होगा। जो भी हमारी कंट्री में आएगा वो ये कहेगा कि यार इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कोई हॉर्न नहीं बजाता। हाँ, देख लीजिए ओवरटेक का भी ओवरटेक, नो पेशेंस, नथिंग। और यहाँ से सिलीगुड़ी इज़ 143 किलोमीटर्स लेडीज एंड जेंटलमैन। सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट कल सुबह, और उसके बाद मुंबई, और उसके बाद मैप के सामने खड़े होकर अगली राइड की तैयारी। ला 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 ला। और ये रहे मेरे चाय के बागान। मैं जैसा छोड़ के गया था भूटान, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही है, किसी ने टच नहीं किया। अगर किसी ने चाय पत्ती यहाँ से लेके चाय बनाई हो तो आई डोंट नो, आई कांट कीप अ काउंट ऑफ एवरी सिंगल पत्ती। आई एम सो रिच, मुझे पता ही नहीं मेरी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, मेरे कहाँ कहाँ बंगलोज हैं। Who cares, man? Who cares? यहाँ आते सार ही ओवरटेक का जो सेंस है वो खत्म हो जाता है लोगों का। मतलब क्या बोलूँ मैं,
जब आपको एक गाड़ी की फाइल दिख रही है इतनी लंबी सामने से आती हुई, मतलब अब आपको जब दिख रहा है कि आपकी जो ओवरटेक की जो फाइल है 5-6 गाड़ियों को आप एक साथ ओवरटेक कर रहे हैं और आपको विजन भी इधर से क्लियर नहीं है, यू शुड नेवर डू दिस काइंड ऑफ ओवरटेक। जब तक आपको क्लियरली आपका रूट, आपका पाथ क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक आप ओवरटेक ना करें। जब गाड़ी छोटी दिखाई दे रही है दूर से, चावल का दाना, दैट्स द टाइम आप ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये देखिए ये क्लोज कॉल। जब आप बाइक पे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, ये डिस्टेंस है ही नहीं, एक ट्रक के सामने दूसरा ट्रक और एक और है, तो जब तक आपको रास्ता ऐसे क्लियर ना दिखे तब तक ओवरटेक ना करें। अगेन कम बैक टू योर लाइन, ये कार को जाने दे, उसके बाद अगेन देखिए रास्ता क्लियर है, गुड, नाउ क्रॉस इट एंड कम बैक टू योर लाइन, बी सेफ, राइट सेफ, ओवर एंड आउट। इनमें खड़ा है, दूसरा है और तीसरा उसको ओवरटेक करके आ रहा है। सीरियसली यार, सी, और ये डबल ओवरटेक, एक ओवरटेक कर रहा है, दूसरा उसके फाइल में ओवरटेक करते। देख रहे हो, इसको भी जल्दी पड़ी है। क्या हो जाता है यार, कहाँ जाना है ना, जहां पहुंचना है वहां तो पहुंच ही जाओगे। और सिलीगुड़ी का ये रास्ता ब्यूटीफुल, वाह, मज़ेदार, वेदर बहुत बढ़िया हो गया। बीच में थोड़ा सा गर्म था, थोड़ा सा वार्म था बीच में, लेकिन अब वापस हल्का सा राइडर फ्रेंडली ये हमारे जवान। और मज़ा आ गया, आहा, क्या बात है, क्या बात है। Back to the टी मोमेंटो, जहां पर हमारा फर्स्ट स्टॉप था। मैं लेता हूँ, आ जाओ आ जाओ, वन सेक आ जाओ। That's it. बस, वेलकम with coffee and muffin and bread butter toast, heading back to hotel and mixed feelings आ रही हैं यार, मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई मीन, हाउ डू आई एक्सप्लेन, कोई भी बाइकर कैसे एक्सप्लेन करे ये आखिरी दिन जब होता है। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड फीलिंग्स, मतलब फीलिंग सैड। सेकेंड इज दैट वाह, लेट्स गेट बैक टू वर्क, वापस अपने शहर, अपने जगह पर जाके काम शुरू किया जाए एंड ऑल्सो अगली राइड की प्लानिंग की जाए। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत जगह घूमना भी बाकी है एंड मुझे नहीं लगता कि मोटरसाइकिल के अलावा कोई ऐसा और मीडियम है और कोई व्हीकल है जिसमें इतना मज़ा आता है। ऑफ कोर्स डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है एंड एग्जॉस्टिंग है। एट द सेम टाइम यू नीड फिजिकल फिटनेस ताकि आप लंबी राइड और लंबे दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक राइड कर सकें। बट वही है कि उसको मेंटेन करते हुए मैक्सिमम जितना आप राइड कर सकते हैं, जगह देख सकते हैं, घूम सकते हैं, उतना करिए। एंड मुझे ये पूरी सीरीज़ देख के बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी एंड कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा कि आपको ये भूटान सीरीज़ कैसी लगी। और डेफिनेटली एक नए टूर के साथ, एक नई कंट्री के साथ, या फिर इंडिया में ही एक नए स्टेट में कुछ नई राइड प्लान करके
डेफिनेटली अगली सीरीज़ आएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का पेज नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ कर लीजिए, द मोटरसाइकिल जर्नल. क्योंकि सारा मोटरसाइकिल से रिलेटेड मैं उसी पेज में डालता हूँ. जो मेरा मेन पेज है अनिल चरणजीत, इट्स ओनली फॉर एक्टिंग एंड अदर पर्सनल थिंग्स. आई रियलाइज कि मोटरसाइकिल के इतने सारे इमेजेस एंड वीडियोस हैं, वो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही अकाउंट में सब कुछ इसमें डाल दूँ. दैट्स वाई एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया, सो दैट मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट्स और जिनको मोटरसाइकिलिंग में इंटरेस्ट है दे कैन फॉलो दैट पेज, बिकॉज उसमें सारे मीम्स एंड पिक्चर्स एंड वीडियोस एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू अ मोटरसाइकिल. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मिलते हैं जल्दी एक नए सफ़र पर. पहुंच गए. यार ट्रैवल आई थिंक मैंने अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई थिंक ये ट्रैवलिंग जो अभी शुरू की है, आई एम रियली हैप्पी दैट वेट नहीं किया कि जब ऐसा होगा तो ये करेंगे, बिकॉज यू कीप ऑन वेटिंग. आप वेट ही करते रह जाते हो. तो जितना हो सके ट्रैवल करना चाहिए. और साउथ अफ्रीका में भी, यहाँ भूटान में भी, जब आप ओल्ड कपल से मिलते हैं या सीनियर सिटीजन से मिलते हैं, तो सबके ज़बान पे एक ही बात होती है कि ट्रैवल एज मच एज यू कैन. और जब आप कर सकते हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी है, जब टाइम है, डू इट. डोंट कीप इट, डोंट पोस्टपोन इट कि रिटायरमेंट के बाद जब पैसा आ जाएगा बहुत तब करेंगे, या जब सेटल हो जाएंगे तब करेंगे. तो वो टाइम कभी नहीं आता. तो अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं या कहीं आप जाना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डिसाइड एंड डू इट. दैट्स इट. सो लेट्स गो. ये कौन है? ये लड़का देखो. हेलो, यू डूइंग गुड, यू डूइंग रियली गुड. कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग.